So students, once again DD राणा क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। डेफिनेशन है, मैंने पहले से ऑलरेडी लिखी हुई है, इससे टाइम बचे तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ए फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल कब होगा। क्या डेफिनेशन है कि अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन इंटरवल कौन सा है, ओपन, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी पॉइंट आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल a, b से बिलोंग करेगा। कब इसको डिफरेंशिएबल बोलेंगे हम, इफ़ limiting value of x tends to c, f of x minus f of c upon x minus c exist finitely। लिमिट जो हमारी एग्जिस्ट की है, द लिमिट विच इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड derivative of a function at x is equal to c पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंस। So limit is called a derivative of a function fx at x is equal to c. It is denoted by f dash c, differentiable at c, or f dash x at x is equal to c. So we write f dash c is equal to limiting value of x tends to c f of x minus f of c divided में x minus c. This limit exists finitely. It means our left hand limit must be equal to right hand limit. It means our left hand limit is equal to right hand limit. That is, limiting value of x goes to c negative, f of x minus f of c upon x minus c must be equal to RHL, means x goes to c positive, f of x minus f of c डिवाइड में x minus c। और लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालने का हमारा क्या प्रोसेस था, कंटिन्यूटी में हम जिक्र कर चुके हैं पहले ही। वी पुट x इज इक्वल टू c माइनस एच, where h is very small quantity. X goes to c implies h goes to 0. So limiting value of h goes to 0, जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, c माइनस एच, f of c माइनस एच माइनस f of c अपॉन, फिर x है, x की जगह पे क्या यूज करेंगे, c माइनस एच और माइनस का c, तो ये c से c कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0, f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c डिवाइड में माइनस का h। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में x को हम क्या पुट करेंगे, c प्लस एच, x हमारा c को अप्रोच करेगा तो h आपका कहा जाएगा 0 पर, तो लिमिट हमारी आई h टेंड्स टू 0, x है, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, c प्लस h माइनस f ऑफ c, और अपॉन में फिर x की जगह पर c प्लस h माइनस c से c कैंसल, limiting value of h tends to 0, f of c plus h minus f of c upon h, both limit
exist and must be equal, then we say that this limit exists, and this value is called left hand derivative, and this is called right hand derivative. Left hand derivative and right hand derivative. So left hand derivative is equal to right hand derivative. अगर इक्वल है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा. और वी कैन से दैट a function fx is differentiable at x is equal to c if and only if left hand derivative must be equal to right hand derivative. किसी भी फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएबल शो करना है किसी भी पॉइंट पर, तो देन वी मस्ट फाइंड देयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड दीज आर इक्वल. देन वी से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to c. And last में if function is differentiable each and every point of interval a comma b, then we say that function is differentiable at entire interval a comma b. अगर ये फंक्शन इस इंटरवल के एक एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो पूरे इंटरवल पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. So students, now we try to understand the concept with the help of an example. Discuss the differentiability of fx is equal to x into mod x at x is equal to 0. Solution. You know very well about the modulus function कि x mod x is equal to mod x हमें x प्रोवाइड करता है कब, when x is greater than or equal to 0, जब हमारा फंक्शन ऑलरेडी तो हमारे पॉइंट्स x greater than or equal to 0 है, पॉजिटिव रियल नंबर्स पर mod x हमें x प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर x और इंटू x विच इज इक्वल टू x स्क्वेयर, एंड इफ x is less than 0 then mod x gives us negative minus x. So x into minus x which is equal to x square. Now we check the differentiability at x is equal to 0 to find out the left hand derivative and right hand derivative.
left hand derivative at x is equal to c. Left hand derivative at x is equal to 0, not c, x is equal to 0, which is equal to limiting value of x goes to 0, f of x minus f of 0 upon x minus 0. x goes to 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में x goes to 0 नेगेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में x goes to 0 पॉजिटिव. So students, limiting value of x goes to 0 नेगेटिव मीन्स व्हेन x इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर. तो एफ एक्स की जगह पर हमारा फंक्शन आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर. और वन एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू भी ये भी हमारे क्या रहेगी 0 और डिवाइड में एक्स माइनस 0. तो एंटायर जो वैल्यू है आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर तरीका तो ये है काम करने का कि x को हम क्या पुट करें 0 माइनस एच पुट करें. जब हम x को 0 अप्रोच कराएंगे तो h आपका कहाँ जाएगा 0 पे, माइनस एच गोज़ टू 0 तो सिमिलरली h गोज़ टू 0. तो नई जो लिमिट है वो क्या आती है आपके पास h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या रिप्लेस होगा आपका 0 माइनस एच का स्क्वायर डिवाइड में x की जगह पर क्या आएगा 0 माइनस एच और आंसर आपका क्या है 0. सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस का h स्क्वायर डिवाइड में माइनस का h से h और h गया 0 पे तो एंटायर वैल्यू आपकी क्या आई 0. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. Similarly we find the right hand derivative. So now we find the right hand derivative. Right hand derivative of a function at x is equal to 0, which is equal to limiting value of x goes to 0 positive f of x minus f of 0 upon x minus 0, which is equal to limiting value of x goes to 0 positive. 0 positive अगर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन f of x के आपके पास x स्क्वायर है और फंक्शन हमें वैल्यू क्या देता है 0 पर 0 और डिवाइड में क्या है आपका x. वैसे तो हम यहाँ से भी 0 लिख सकते हैं डायरेक्टली. तो ऑन द सेम पैटर्न अगर हम यहाँ पर इसको x को पुट करें हम 0 प्लस एच तो कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है सोल्व करने में. तो एंटायर वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 आएगी. सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू 0. तो f of x is differentiable. f of x is differentiable at x is equal to 0. तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 पर क्या हुआ डिफरेंशिएबल हुआ. दैट इज़ f डैश 0 इज इक्वल टू 0. सो ये कैसे एग्जांपल है जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल है 0 पर. नाउ वी टेक द अनदर एग्जांपल which is not differentiable at x is equal to 0. So students, we take another example so that a function f(x) is equal to x sin 1 by x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0 is not differentiable at x is equal to 0.
आप सभी को पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। So first of all we calculate the left hand derivative at x is equal to 0 is equal to limiting value of x goes 0 negative f of x minus f of 0 upon x minus 0 which is equal to limiting value of x goes to 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या है आपका, x sin 1 अपॉन x और माइनस f0 0। क्यों f0? क्योंकि fx आपके पास क्या है, x sin 1 अपॉन x है, और f of 0 तो 0 इंटू एनी वैल्यू साइन 1 बाय 0, तो एंटायर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि साइन x जो है साइन इन्फिनिटी लाइज बिटवीन -1 से 1 और बार फाइनाइट 0 है, अंदर कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई होकर हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। डिवाइड में x, तो वी पुट कैंसिल एट x से x, now we put x is equal to 0 minus h, x goes to 0 implies minus h goes to 0 implies h goes to 0। नई लिमिट h goes to 0 sin 1 by x है, तो x की जगह क्या पुट होगा आपका माइनस का h, सो विच इज़ रिटन एज h गोज़ टू 0, ये नेगेटिव है, बाहर ले लेंगे हम इसको, साइन 1 अपॉन h। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, विच इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस, बाहर ले लेंगे, साइन 1 अपॉन h। साइन 1 अपॉन h इम्प्लाइज, साइन h को 0 अप्रोच कराओगे, साइन 1 बाय 0, दिस इज इक्वल टू साइन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, साइन इन्फिनिटी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट वी नो दैट साइन थीटा belongs to -1 से 1 फॉर ऑल थीटा। साइन जो थीटा है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा फॉर ऑल थीटा के। दिस इम्प्लाइज साइन इन्फिनिटी बिलोंग्स टू -1 से 1। इट मीन्स साइन, इट इम्प्लाइज वी कैन नॉट फाइंड exact value of sin theta। It means the value of sin infinity oscillates between -1 to 1, hence left hand derivative does not exist। Similarly, we can find right hand derivative also does not exist, hence we can say that left hand derivative not equal to right hand derivative। It means function is not differentiable at x is equal to। Now students, very interesting result है कि
if a function is differentiable at a point, comma, it is necessarily continuous at that point. इट मीन्स अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पर तो वो 100% कंटिन्यूस होगा. बट कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू. बट इसका कन्वर्स कोई ज़रूरी नहीं है ट्रू हो भी सकता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है नहीं. तो नाउ वी ट्राई टू proof of this theorem. Proof. एक बार फिर स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पर तो 100% वो फंक्शन पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा. प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट. नाउ एफ एक्स गिवन है हमें. एफ एक्स इज differentiable at x is equal to c implies limiting value of x goes to c f of x minus f of c divide में x minus c must be equal to f plus c. ये हमें गिवन है. ये एग्जिस्ट करेगा हमारा फाइनाइट क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पर. नाउ वी वांट टू शो दैट फंक्शन इज continuous at x is equal to c. In order to show that function is continuous at x is equal to c, so we want to show that is हम प्रूफ क्या करेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x गोज टू c f of x must be equal to f of c. हम ये शो करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x गोज टू c f of x is equal to limiting value of x goes to c f of x. इसमें हम क्या करते हैं माइनस का f of c को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और f of c को हम ऐड कर देते हैं. तो हमारी एंटायर इक्वेशन क्या रहेगी बैलेंस में रहेगी क्योंकि हमने उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट किया और उसी टर्म को हमने क्या किया ऐड किया. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x गोज टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c. f ऑफ x माइनस f ऑफ c में हम x माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस c से हम इसको डिवाइड करेंगे. जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया उसी टर्म से हमने उसको डिवाइड किया. और नाउ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x गोज टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड में x माइनस c को अलग सेपरेट लिमिट अप्लाई और x माइनस c पे अलग से हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पर हम लिमिट अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं. तो हमने दोनों फंक्शंस पर लिमिट अलग अलग से अप्लाई की और इसमें x है ही नहीं है तो एक बार लिख भी लें कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x गोज टू c f ऑफ c में x ही नहीं है तो लिमिट किसी काम का नहीं है. तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. जो एंटायर की वैल्यू है जो मैंने मार्क किया है वो हमारे इक्वेशन नंबर 1 में देखिए. इक्वेशन नंबर 1 में वो वैल्यू हमारे पास क्या है f डैश c इंटू x को हम क्या अप्रोच कराएंगे
सी, तो सी माइनस सी क्या हो जाएगा आपका 0, और दिस इज प्लस एफ ऑफ सी, तो एंटायर वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग 1, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ डैश सी। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स गोज टू सी, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ सी, implies continuous at x is equal to c। सो हमारा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो 100% उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा। कन्वर्स के लिए एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। कन्वर्स, वी टेक द मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स। मॉडुलस फंक्शन इज continuous at x is equal to 0। ये हमें पता है कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो ये पर 0 पर भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मोड x क्या है, x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम ये शो करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ वी फाइंड द डेरिवेटिव, तो नाउ वी शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नॉट differentiable at x is equal to 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, LHD, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x गोज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड में x माइनस 0 विच इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x गोज टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, अगर 0 से s है तो मोड x की जगह पे हमारे पास पहले तो हम एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं मोड x माइनस 0 अपॉन x, और मोड x की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा आपका माइनस का x और डिवाइड में x, और कैंसिल कर देंगे x, तो रिजल्ट क्या है आपका माइनस में। Similarly, right hand derivative at x is equal to 0, hence x goes to 0 positive, f of x minus f of 0 डिवाइड में x माइनस 0। अब हम 0 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो मोड x जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मोड x हमें x देगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x गोज टू 0 पॉजिटिव मोड x माइनस 0 अपॉन x विच इज इक्वल टू x गोज टू 0 पॉजिटिव, मोड x की जगह पे x आएगा और फिर 0 है बाद में, और x डिवाइड में x कैंसिल, और यहाँ से रिजल्ट क्या है आपका 1। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आपका -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आपका 1 है, तो इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट था जिसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस